Okay, today we have to see the measurement of length, mass and time. So before going to that, I will just discuss yesterday what we have derived. Yesterday we have derived the two relations. टू डेरिवेशंस हमने किए थे कल. एक डेरिवेशन क्या था, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और द प्लैनेट कैसे निकालते हैं, वो एक डेरिवेशन था. और दूसरा था प्लैनेट का, कोई भी प्लैनेट या मून है उसका डायमीटर कैसे निकालना है. ये दो डेरिवेशंस हमने कल देखे थे और दोनों के दोनों डेरिवेशंस हमने कल डिराइव कर लिया था. तो आज हमको देखना है रेंज ऑफ लेंथ, रेंज ऑफ मास एंड रेंज ऑफ टाइम. मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, these three things we have to see in detail. अभी देखो, in this case, length, if you have to measure the length, what we will do, we will be measuring it in meter or centimeter or kilometer. Suppose if you have to calculate the distance between Bidar and Hyderabad, then we will not calculate it in centimeter, we will calculate it in what, kilometer. Okay, if suppose somebody asks you what is the length of your pen, so what you will say, you will measure it in centimeter. There you will not say it is in kilometer. Why? Because depending upon the use, depending upon the length, the units are there. Okay, depending upon the length, units are there. So now in physics, what is the range of the length? So we will consider about range of length. In case of this range of length, we have to understand that we will measure the length from 10 to the power of minus 15, 10 to the power of minus 15 to 10 to the power of 26 मीटर. मतलब क्या है ये, हम जो लेंथ मेजर कर रहे हैं 10 टू द पावर ऑफ माइनस 15 मीटर, ये क्या है एक्चुअली, ये किसका लेंथ है, किसका डिस्टेंस है, ये है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस. दिस इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस. रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज हाउ मच, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 15 मीटर. ओके, सो हमारा जो फिजिक्स में फाइंड आउट करने का, लेंथ फाइंड आउट करने का जो मेथड है और जो मैक्सिमम वैल्यू व्हाट वी कैन फाइंड आउट इज़ 10 टू द पावर, मिनिमम वैल्यू हम कितना फाइंड आउट कर सकते हैं, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 15 मीटर. ये जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस है, टू 10 टू द पावर ऑफ 26 मीटर. अब ये 26, 10 टू द पावर ऑफ 26 क्या है, ये किसका है, ये दिस इज़ द रेडियस ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स. यूनिवर्स में हम जितना देख सकते हैं, कितना रेंज हम देख सकते हैं यूनिवर्स, 10 टू द पावर ऑफ 26 मीटर का रेंज में हम देख सकते हैं. सो दिस इज द रेंज ऑफ लेंथ. वंस अगेन लिसन, रेंज ऑफ लेंथ में वी कैन मेजर द radius of the nucleus, which is 10 to the power of minus 15 meter, to 10 to the power of 26 meter, which is the observable universe. यूनिवर्स को हम देख सकते हैं इतना मीटर तक. नेक्स्ट, मास. व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ मास? मास हम मेजर करते हैं. मास मीन्स व्हाट एक्चुअली, it is the basic property of the matter.
मास इज द मेजर ऑफ व्हाट, इनर्शिया ऑफ द बॉडी। उस पर्टिकुलर बॉडी में टोटल मास कितना है, दैट इज द थिंग। दिस मास विल नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम। मास इज मेजर्ड इन व्हाट, kilogram. Mass is measured in kilogram. But if suppose if we are going to a shop and if we buy something, you take example of sugar. For our daily need, what you will do? You will buy 5 kg sugar or 10 kg sugar or 15 kg sugar. Okay. If suppose there is a function at our home, some marriage function is there, so what you will do? You will purchase in bulk 100 kg, 200 kg or whatever it is requirement. Okay, so that is regarding the sugar. But suppose if you are going to buy the gold खरीदने के लिए गए तो क्या करेंगे, किलो में खरीदेंगे क्या? नहीं, it is very very costly. So gold will be measured in grams, 5 gram, 10 gram या 1 gram. In this way we will measure. But suppose somebody asks you that what is the mass of the planet or what is the mass of the star, what is the mass of the earth, ये कैसे मेजर करेंगे? ओके, समझ में आ रहा है? अभी हम जो चीज़ खरीद रहे हैं मार्केट में, कहीं पे भी जाके कुछ भी हम खरीद रहे हैं, 1 ग्राम से लेके तो कितने भी ग्राम तक हम उसको खरीदते हैं, उसका एक पर्टिकुलर यूनिट है। मगर हमको पूछ लिया कि अर्थ का मास कितना है या मून का मास कितना है। ओके, तो मून का मास और अर्थ का मास कैसे मेजर करेंगे? दिस इज नॉट वेरी इजी वे। ओके, so this is measured with the help of physics using Newton's law of gravitation. Okay, अभी ऐसा नहीं है मास ऑफ द अर्थ जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, साइंटिस्ट ने बताया है, वो उसको कुछ वजन लेके नहीं देखा है उन्होंने। दे हैव कैलकुलेटेड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, अगर किसी ने बोल दिया है कि व्हाट इज द मास ऑफ द एटॉमिक्स पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका मास कैसे मेजर करना है? तो ये कैसे मेजर करेंगे? तराजू से नहीं कर सकते। सो देयर इज अ सेपरेट डिवाइस दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। सो मास स्पेक्ट्रोग्राफ is a device which is used for calculating, which is used for measuring the mass of the atomic substance. Okay, so if you have to measure the mass of the earth, mass of the planet, then we will be using which law? Newton's law. We will be using Newton's law of gravitation. If you have to measure the mass of the atomic particle or subatomic particles, we will be using mass spectrograph. मास का जो रेंज है, रेंज ऑफ मास इन फिजिक्स, हाउ वी कैन फाइंड आउट, कितना से कितना रेंज तक हम फाइंड आउट कर सकते हैं? 10 to the power of -30 kg, ये क्या है? दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज मास ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन। तो इन फिजिक्स व्हाट वी विल बी डीलिंग विथ विच रेंज? 10 to the power of -30 to 10 to the power of 55 kg। ये 10 to the power of 55 क्या है? ये मास ऑफ यूनिवर्स है। पूरा जो यूनिवर्स है इसका मास कितना है? 10 to the power of 55 kg। So these all things we have found out with the help of physics only। तो ये अभी हमने ये फर्स्ट वीडियो में किसका देखा है? रेंज ऑफ द लेंथ, मास, रेंज ऑफ द मास देखा है। तो हमको क्या मालूम पड़ गया? रेंज ऑफ द लेंथ ऑब्जर्वेबल कितना है? 10 to the power of -15 से 10 to the power of 26 मीटर। मास का रेंज कितना है? 10 to the power of -30 kg to 10 to the power of 55 kg।
सेकेंड वीडियो में हम आगे का देखेंगे।